a very warm welcome to LWS once again. आज का जो हमारा टॉपिक है it is again related to my last video, that is Montreal Protocol. आज के टॉपिक का नाम है किगाली अमेंडमेंट. Now, as the name suggests, it is an amendment to something that has already taken place, right? So, Kigali Amendment was an amendment that was done to Montreal Protocol. It was an amendment that was done to Montreal Protocol in 2016. अब Montreal Protocol के अंदर ये बताया गया था that जो different these ozone depleting substances that were earmarked like CFCs या फिर HCFCs. अब ये जो सब्सटेंसेस थे इनको अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये कहा गया था दैट इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा किससे? HFC से, दैट इज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, बिकॉज HFCs वर अ नॉन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस. ये नॉन ओजोन डिप्लीटिंग थे, दैट इज व्हाई अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन 80s and 90s it was decided that CFCs and HCFCs को HFCs से replace कर दिया जाएगा because these were non-ozone depleting substances and these, as you know, are ozone depleting substances. But later, as Montreal Protocol को कई बार amend किया गया है. एक बात आपको याद रखनी है, as and when there was a need by the environment, as and when there was a need felt by economies of the world, या फिर जैसे जैसे नई नई साइंटिफिक डिस्कवरीज होती गई, नई नई टेक्नोलॉजी आती गई, नई नई चीज़ों का हमें पता चलता गया दैट दीज थिंग्स आर हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट और दीज थिंग्स आर नॉट हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट, तभी तभी हम इस प्रोटोकॉल को अमेंड करते गए. किगाली अमेंडमेंट भी उसी का एक हिस्सा है. अब ये तो पहले था 80s और 90s तक, ये हमें पता था कि HFCs नॉन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, तो इनको इससे रिप्लेस कर दिया जाए. बट ग्रेजुअली हमें ये पता चलता है that HFCs are an even bigger threat to the environment because they are a very potent greenhouse gas. HFCs are a very potent greenhouse gas. That is, इनका जो GWP है, that is global warming potential, it is 12 to 14,000 times that of carbon dioxide. दैट इज इनकी जो हीट ट्रैप करने की कैपेसिटी है, इट इज 12 to 14,000 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो इट वाज सीन दैट अगर ये वाली गैसेस को हम ऐसे ही छोड़ देंगे या इग्नोर कर देंगे या इनको इससे रिप्लेस करना शुरू कर देंगे, सो वेरी सून, दैट इज बाय मिड ऑफ दिस सेंचुरी, दैट इज 2050 तक ही हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज है वो 0.5 से 1 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा, which no country wanted, right? Because इनकी GWP was very high. So what happened? There was an urgent need. An urgent need was felt to replace these gases. There was an urgent need felt to replace HFCs, right? क्योंकि अगर इसको थोड़ा सा भी छोड़ दिया गया तो this will result, right? So countries now decided that they have to take quick action. They cannot just ignore it, they cannot just leave it ताकि कोई नेक्स्ट अग्रीमेंट आए या कुछ नेक्स्ट अमेंडमेंट हो तब तक इसको हम ऐसा ही छोड़ दें. स्टेटस क्यों मेंटेन करना पॉसिबल ही नहीं था इस केस में. तो बहुत सारी निगोशिएशंस होती हैं, बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं एंड देन किगाली अमेंडमेंट रिजल्ट्स. नाउ बट देयर वाज, अब किगाली अमेंडमेंट में क्या हुआ, कंट्रीज डिसाइडेड दैट जो HFCs थे इनको कंट्रोल सब्सटेंसेस में इंक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है. एंड बाय लेट 2040s तक इनकी रिडक्शन 80 to 85% तक फेज आउट इनकी रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है. सो दैट वाज व्हाट वाज डिसाइडेड अंडर द किगाली अमेंडमेंट. बट देयर वाज वन प्रॉब्लम. अब हमने कहा है that HFCs are non-ODS, they are not ozone depleting substance, but it is a greenhouse gas. But जो Montreal Protocol है, that is not about greenhouse gases.
Montreal Protocol only deals with ozone depleting substances. So why HFCs were taken consider under Montreal Protocol? उसको Montreal Protocol के amendment में क्यों डाला जा रहा था, जबकि they should go under Climate Change Convention, उसकी amendment में डालना चाहिए था. So why this thing is happening? So that was a major question and a major cause for debate between the countries. In fact जो major debates भी हो रही थी वो developed और developing nations के बीच में हो रही थी, जैसा कि अक्सर होता रहा है climate change की सारी ही discussions में, right? तो ऐसा क्यों था that it was not included under climate change convention? One of the major reasons was that क्योंकि जो Kyoto Protocol तब तक Paris Agreement was not worked out. अब जो क्योटो प्रोटोकॉल था उसका देखा था इट वाज नॉट वेरी इफेक्टिव ओवर टाइम, दैट इज व्हाई पेरिस एग्रीमेंट केम इनटू बीइंग, ठीक है. और हम इतना टाइम, देयर वाज नो टाइम टू वेस्ट, देयर वाज नो टाइम टू बाय, और कंट्रीज कुड नॉट अफोर्ड टू एंटर इनटू प्रोलॉन्ग डिस्कशंस ईयर ऑन ईयर, एंड तब जाके वो एचएफसीज को फेज आउट करें. दिस फेज आउट नीडेड एन अर्जेंट इंटरवेंशन, ठीक है, बिकॉज उसकी अर्जेंसी इतनी ज़्यादा थी इस प्रॉब्लम की, बिकॉज ऑफ इट्स GWP, दैट इसको प्रोलॉन्ग नहीं किया जा सकता था, राइट. एंड दैट इज व्हाई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज कंसिडर्ड द बेस्ट ऑप्शन और द बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू हेल्प इन द फेज आउट. Another reason was that under Montreal Protocol only these gases were being replaced by HFCs. So it was primarily introduced by Montreal Protocol. So that is why also इसको under Montreal Protocol की amendment में ही include किया गया, ठीक है. So that is what you need to remember about Kigali Amendment. It is very important because of this clause only, ठीक है. And another thing that HFCs को replace किया गया even though they were not an ozone depleting substance, right. So that is what you need to remember. Again जो developed और developing nations से उनको फेजिंग आउट टारगेट जो दिए गए थे, दैट वाज अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटीज, अकॉर्डिंग टू देयर जो उनके हमेशा ही हमने देखा है कि जो डेवलप नेशंस हैं उनको इमीडिएट टारगेट्स दिए जाते हैं, एंड द डेवलपिंग नेशंस आर गिवन एक्सटेंडेड टारगेट्स. इस केस में भी यही हुआ था, राइट. सो दैट इज ऑल यू नीड टू रिमेंबर अबाउट किगाली अमेंडमेंट. सो विद दिस फाइनली हमारा ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या फिर आप कह सकते हैं किगाली अमेंडमेंट का टॉपिक कम्स टू अ क्लोज. So I will come up next with another topic. So please do like the video, subscribe to the channel, and also hit that bell icon so that whenever I upload a next video, you get notified. And thank you so much for watching.